A very good afternoon to one and all. It's my honor itself to honor this beautiful audience and our prestigious speakers. We believe parents are teachers, guides, leaders, protectors, and providers for their children. So with this, I, Ruby Gill, with great joy and immense exultation, extend my warm welcome to all the parents on behalf of Lovely Professional University for today's webinar on the topic Building Tomorrow, Today, Role of Parents. Before we commence, I would like to introduce our speakers of the day. I humbly welcome the epitome of wisdom and intellect, Ms. Malvinder Gill, Deputy Dean, Division of Student Relationship, Assistant Director, Department of Counseling and Happiness, Lovely Professional University. Having an experience of 41 years, she started her career as a lecturer of law in Guru Nanak Dev University. She has been a solicitor in London and a regional manager and trainer for retail chain in London. Her mantra of success is the right attitude, focus, and desire to learn. It's a privilege to have you on board with us, ma'am. Thank you so much for joining. With equal pleasure, I welcome Mr. Sarabjit Singh Quatra, Deputy Dean, Human Resource Development Center, Lovely Professional University. Accomplished his MBA from National Institute of Management. He is a certified trainer from JCI University, United States of America. From the last 15 years, he has been training premium companies across and hierarchies in selling skills, assertiveness, leadership, and soft skills worldwide. Thank you so much, sir, for joining. Likewise, I would like to extend my warm welcome to Professor Archana Malik, Head, Department of Soft Skills at Lovely Professional University. She has done her MBA Finance from IBS Chandigarh. To her credit, she is a corporate trainer and certified NLP trainer. Her 13 years of experience in innovating different workshops with experiential learning has created a niche in her career. She has also developed brands for various learning forums for faculty. Thank you so much, ma'am, for joining us today. So with this, we'll begin our session. So over to you, Archana ma'am, for the content of the day. Thank you so much, Ruby. Before we go ahead, I would like to, really request Dr. Sarabjit Singh Quatra to please go ahead and help us understand, as a parent, what are the various dilemmas that usually we have in our mind? What are the expectations? What are the crossroads that parents feel being on the other side of the table? So if you could really help us understand it a little better, please. Yeah, thank you, Archana. And you see, some of the concerns that we have come across during our interaction with the concerned parents is that they are worried, whether the higher education that would build the tomorrow of their wards. Today, where do they need to focus? Education, they want to educate their children, but would the children get career focused education? कहाँ मिलेगी? किस तरह से वो relevant होगी? कौन सी स्ट्रीम बहुत suitable है जो बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सके, करियर दे सके? अगर है तो कुछ ये primarily these are the concerns queries which we had over the interaction with the various parents. इसके अलावा कौन सी facilities हैं जो बच्चों को एक अच्छा education का environment देती हैं? What kind of facilities provide an education ecosystem? These were some of the concerns. एक और था बहुत
कि suddenly after the school day, the children are now into the world of higher education, where the safe, so to say, safe boundaries of schools are no longer there. So how can I, as a parent, keep track of the progress of my child? तो इस तरह के कुछ कंसर्न्स आए, काफी कॉमन हैं, और आज देखते हैं किस तरह की क्वेरीज और आती हैं, लेकिन ये ऐसे तरह तरह के हैं कि हमारे पास बहुत सी एजुकेशन की एडवर्टीजमेंट्स पहुंचती हैं, लोग बताते हैं, लेकिन इतना ज्यादा होने के बावजूद बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि which is the actual right institution, one. Second, the curriculum. And third, how I actually can find out, well, if this is the truly, as they say, or the advertisements say, that this is the best educational institution. तो मैं एज अ पेरेंट ये किस तरह से इसका मापदंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसे सवाल थे. So we are again open to answer the queries of the concerned parents, and I would like to salute all those parents who have taken out time to be with us today in the quest of building the bright tomorrow of the child. I think today the time invested is going to be worth it. Thank you, sir. That was very helpful. What are the major things what we've seen? We also are receiving in terms of questions. कौन सा academic institute वो select करे अपने बच्चे को? What are the parameters जो उनको दिमाग में रखने चाहिए? So what are the major pointers that somebody as a parent should keep in mind? What are those expectations in terms of academic institute when they're choosing a college or a university for their child? Malvinda ma'am, I would request you to please enlighten us on this. Sure. Such a valid question. देखिए, when this is one of the most important, I would say, during the life of a child and during the life of a parent, ये सबसे ज़्यादा important time होता है जबकि उनको decide करना होता है कि अब बच्चे की schooling खत्म हो गई है, and now he has to choose a institution, a university for higher education. It's one of the key decisions that a parent has to make at that particular point in time. कुछ ऐसे questions हैं which are common to all the parents when they are deciding where they should admit their child to take higher education. And some of the key things that they have to keep in mind is, first of all, is the academic institution in which they are going to admit their child for higher education, उसकी जोन सी academics की curriculum है, उसके जो subjects हैं, are they excellent? Are they, you know, at a particular standard? Because that is very important how the child is going to progress. So वो वाली academic excellence कैसे देखें, कैसे पता करेंगे? This we will tell you in, you know, if there is a question regarding that. But वो is one of the key factors. Secondly, academics and more academics is never enough. पढ़ाई में बच्चा जितना मर्जी अच्छा क्यों ना स्कोर कर ले, एक बहुत अच्छी CGPA लेके पास हो जाए, सारे सब्जेक्ट मैटर की उसके पास नॉलेज हो जाए, पर along with that, all the employers are looking for something what we call skills. So skills enhancement करने के लिए क्या उस institution के पास, उस university के पास ऐसे programs हैं जो कि knowledge के साथ साथ skill enhancement भी कर सकें? वो भी एक चीज उनको ध्यान में रखनी है. Secondly, क्या वो courses वो टाइप के ऑफर करते हैं जिसमें कि हाई एम्प्लॉयबिलिटी कंटेंट हो, कि बच्चा वो कोर्स ज्वाइन कर सके, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी ऐसे हों जो कि फॉर एग्जांपल
Yesterday only I was reading that there is so much employability of full stack programs and artificial intelligence and Internet of Things. क्या वो type of programs offer करते हैं? Journalism हो गया, pharmacy हो गया, hospitality हो गया, MBA हो गया. So वो सारे programs are highly employable. So once the child passes, they will be able to get a job in a good corporate organization, government organization. Along with that, क्या वो institution के पास facility है? वो कंपनीज को इनवाइट करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर उनको कोई अपने बच्चों को एडमिट कर कोई एग्जाम दिलवाना है तो क्या वो फैसिलिटी है, उसका भी ध्यान रखना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ओवरऑल एनवायरनमेंट इज सच कि बच्चे का मन करे कि मैं यहाँ रह के पढूं. सो ये सब चीजों को देखते हुए मैं तो यही कह सकती हूँ कि LPU, Lovely Professional University, has taken care of every single aspect, starting from higher level of education to employability to all kind of courses. So I hope that I've been able to answer that these are the key factors which every parent should look at, and I'm sure that they are looking at before they admit their child to a higher education institution. Thank you, ma'am. That was very helpful. As you said that, whether you're talking about jobs, scenario of IoT, AI, full stack, or how LPU is doing ahead, I have a simple, quick question. We're representing LPU here. I have this question towards Quadra, sir. Sir, can you help us understand how does LPU actually fit the bill? Ma'am has given us a promise, but if you could really help us with some facts and figures, कि LPU कैसे ये parameters पे अपने आप को prove कर पाता है या सिद्ध हो पाता है, that will be really helpful. Please, sir. It will be my privilege because we are interacting with really concerned parents. बहुत बड़ा दायित्व हमारा भी बनता है कि जो पेरेंट्स आज आए हैं इस वेबिनार में उनको एक एविडेंस मिले. तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, मैं कुछ दिखाना चाहूंगा. I would just like to play a small little video because they say seeing is believing, ऐसा कहा जाता है. तो मैं 1 मिनट अगर मुझे थोड़ा सा समय दें आप. लेट मी just a small little video I wanted the parents to please have a look at. ये मैं
अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाह रहा था। देखिए अभी किसी भी संस्था की सबसे जो एक पहचान होती है वो होती है रैंकिंग। आपने देखा होगा इस वीडियो में भी, और ये मैं आपको एक लेटेस्ट रैंकिंग भी शेयर करना चाहूंगा, एक टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 हाल ही में दुनिया की रैंकिंग्स में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को 74th रैंक मिला है। मैं दुनिया भर की यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखना है कि जिस हायर एजुकेशन को मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए चुनने जा रहा हूँ, what kind of accreditation rankings do they have? You know, the series of rankings were there right in front of you, which I think is worth keeping in mind. और ये जो अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, तो ये ग्लोबली 74th रैंक LPU को मिला है। एक वाकई एक ये सम्मान की बात भी है, और बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी इससे बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनका भविष्य हमारे हाथों में है, और हम उसको पूरी तरह से अपने दायित्व को समझने और परखने में सक्षम हो, ऐसी कामना रहती है हमारी। हमने देखा होगा दूसरा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपने हाल ही में ओलंपिक्स जो पिछले टोक्यो में हुए थे, उसमें से 12 बच्चे, जो 13 बच्चे हमारे जो वहां गए थे, यानी कि ऑलमोस्ट 1/10 of the contingent which was there in the Tokyo Olympics, उनमें से 12 हमारे बच्चों ने वो वहां पे मेडल्स जीते, और जो एक ही गोल्ड मेडल मिला नीरज चोपड़ा, बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूं कि वो भी हमारे इसी वातावरण में उसने अपना एजुकेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, कल्चरल फैसिलिटीज आपने देखी, हमारे पास यहाँ हर प्रांत से बच्चे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के 50 देशों से बच्चे हैं। और आप देखिए कि जितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उतना ही ज्यादा दूसरे की कल्चर को समझने, सद्भावना की, एक कंजीनियल एनवायरनमेंट की, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कल्चर, दिस इज व्हाट इज डेवलप्ड। और ये दुनिया में कोई भी किताब नहीं पढ़ा सकती। ये सिर्फ एक वो इकोसिस्टम, वो वातावरण पढ़ा सकता है जो ऐसा एक कल्चरल डाइवर्स वातावरण मिलता है। और यहाँ पे हमको आपने देखा होगा कि तरह तरह की लोग हर तरह के से आए हैं और मिलके यहाँ पे अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी, ये एक मापदंड है देखने का। आप देखिएगा, आपने इसमें वीडियो में भी देखा होगा कि ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर अ डेस्टिनेशन, LPU is the destination for their manpower recruitment. तो अब क्या कहते हैं कि मेरा बोलना या ये आपका देखना और समझना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन एक वाकई ही एक सक्षम उज्जवल भविष्य की जो कामना हर एक कंसर्न पेरेंट करता है, उसकी जो पूर्ति है LPU वाकई ही एक वो डेस्टिनेशन है जो वहां तक ले जा सकता है। Very much, that was very helpful. First question, जब आपने बात करी प्लेसमेंट की, मेरा बच्चा बहुत ही शाय है, तो प्लेसमेंट्स बात कर रहे हैं, वो कैसे इन पाथ पे चल पाएगा, ठीक है। साथ ही में एक और क्वेश्चन है हमारे पास चैट में, where one of the parent has asked, what are the programs that you develop, you have that help students develop soft skills and motivate them towards start thinking to do something different from aiming just for the job. So there are two questions which are quite similar. I'm going to request ma'am if you could throw some light. देखिए, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये था कि मुझे फिर से बताइए एक बार, what was the question exactly? The question is from the question.
where he says that my child is very shy. Okay, I got it. So usually ये एक देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि जो बच्चे एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर से आते हैं, पहले घर में होते हैं, स्कूल भी यूजुअली एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर ही होता है जहाँ पे एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। अब यहाँ पे एकदम इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जरूरत होती है। समटाइम्स पीपल आर वेरी शाय, वो सोचते हैं या उनके पेरेंट्स भी कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि इनकी कैसे तैयारी होगी कि दे विल बी एबल टू बी वेरी सक्सेसफुल इन देयर प्लेसमेंट्स, उनको नौकरी कैसे मिलेगी, उनकी ये कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे अच्छी होंगी। तो मैं सब पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि इस एस्पेक्ट पे हमने पूरा ध्यान दिया है। फ्रॉम द टाइम बच्चा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिट होता है तो सारे कैरिकुलम्स के अंदर एक और कैरिकुलम भी है जिसको कि हम बोलते हैं प्रेपरेशन फॉर प्लेसमेंट्स, प्रोफेशनल एनहांसमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने सॉफ्ट स्किल्स भी है जो कि प्रिपेयर करता है जीडी कैसे करनी है, सीवी कैसे बनानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है। साथ में वर्बल एबिलिटी के प्रोग्राम्स भी होते हैं क्योंकि उसमें बच्चे को बोलना कैसे, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन वर्बल, एंड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है उस पे भी। और साथ साथ में क्योंकि कंपनीज जो सी होती है वो अपने एक स्पेसिफिक टेस्ट भी देती हैं, प्लेसमेंट के साथ साथ वो एक टेस्ट देती है जिसमें रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी और ये सब चीजें टेस्ट की जाती है। तो टेस्ट के मुताबिक भी ये एनालिटिकल स्किल्स की भी ट्रेनिंग साथ साथ में दी जाती है। सो ये क्लासेस जैसे उनकी एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं जो कि वो सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ते हैं, इसके साथ साथ वो भी क्लासेस चल रही हैं। और ये क्लासेस चलाने के लिए, पढ़ाने के लिए भी हैव very professionally trained trainers. They are professionally trained only to be able to help the student to engage in such a manner, to be able to participate, to be able to practice, to be able to learn. कि जब तक वो 6th, 7th, 8th सेमेस्टर में पहुंचता है उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि वो पार्टिसिपेट करके ही लर्न करता है। Along with it, जब एक स्पेसिफिक कंपनी भी आती है तो क्योंकि हर एक कंपनी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक जनरल प्रेपरेशन हो, एक स्पेसिफिक प्रेपरेशन भी कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर Amazon आ रहे हैं, जो आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, गूगल आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, HCL आ रहा है, विप्रो आ रहा है, यू नेम इट, वी गॉट इट। सो उसकी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट होती है कि जॉब है, ये उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन है, उस तरीके का बच्चा हमें चाहिए, तो उसकी प्रेपरेशन स्पेशली करवाई जाती है जस्ट बिफोर द प्लेसमेंट। सो आई कैन से दैट ऑल द चिल्ड्रन हु रजिस्टर फॉर प्लेसमेंट्स, इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी होती है लेटर ऑन इन द सेमेस्टर्स, उनको पूरी अच्छी तरह से तैयारी की जाती है। कि मैं आपको प्राउडली ये भी बता सकती हूँ कि अभी रिसेंटली हमारा एक बच्चा 62 lakhs पर एनम के पैकेज पे भी एम्प्लॉय हुआ है, दूसरा Amazon में गया 46.4 लाख के पैकेज में। सो अगर बच्चा मेहनत करेगा विद द सपोर्ट ऑफ हिज टीचर्स, विद द सपोर्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, आई कैन नॉट सी दैट स्काई इज द लिमिट जिसे हम कहते हैं, वो कुछ अचीव कर सकता है। सो आप इस चीज बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि हमारा बच्चा शाय है एंड ही और शी विल नॉट बी एबल टू मे बी कम अप टू द लेवल जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर उसको देख रहा है। सो इस पे हमने पूरा ध्यान दिया और ये रेगुलर क्लासेस चलती हैं। Thank you, ma'am. Thank you so much. We have another asking very simple question. There's a major concern. My daughter has always lived in a very protected environment, whether it is school or home. How can I be assured that my daughter will not feel lost? Please help us and assure Megha ma'am that her daughter will be safe here and there will be a constant support from the university for her. Father, sir, if you could help us resolve the query of Megha ma'am, please. पहले तो मेघा जी, मैं I really salute this question. It's very relevant question.
हमने बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमने बात करिकुलम की, हमने बात प्लेसमेंट्स की, लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ रहता है, बड़ा एक महत्वपूर्ण तो रहता ही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन अ चाइल्ड्स लाइफ। स्कूल तक तो ठीक है, आपकी निगरानी में है, देख रेख में है मेघा जी, तो बच्चा सामने रहता है नजरों में, तो तसल्ली भी रहती है और बच्चे का एक मेंटल अप्रोच सेटअप भी वैसा ही होता है। लेकिन एकदम से वो बाहर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से जब वो एक ऐसी बड़ी दुनिया में जाता है, तो ये जो एक फियर ऑफ अननोन और एंजाइटी ऑफ अननोन जिसे हम कहते हैं, ये होना स्वाभाविक है। आई एग्री विथ यू, एज अ पेरेंट हमने भी ऐसा ही महसूस किया। तो मेघा जी, वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम यहाँ एलपीयू में कैसे करते हैं, ये जानने का आपको पूरा अधिकार है, पूरा हक है आपका। और मैं आपको पूरा उसका एक रोड मैप, जो बच्चे की एडमिशन से लेके जब वो हमारी यूनिवर्सिटी में एंटर करता है, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हर बच्चा जो एडमिशन लेता है, जैसे ही वो ड्यू टाइम में यूनिवर्सिटी कैंपस में आता है, तो एक क्रिया है, it's a complete event which is called as freshman induction। जो नए बच्चों को right from their entry, their ID card building, making their designated college, the campus tour. Not only that, there are so many events which are held just to orient the child who has come from such a protected environment। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, वो जब देखते हैं, और ये कौन करता है, हमारे बच्चे करते हैं। ऑफ कोर्स फैसिलिटेटर्स हमारे फैकल्टी होते हैं, तो ताकि ये बच्चे देखते हैं कि ये मेरे जैसे बच्चे ही देखिए ये काम आज कर रहे हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो entire there is almost a week-long curriculum which we call an event, the freshman induction, so that there is a smooth transition from that protected environment that the child has come from to the higher education ecosystem। एक दूसरा, हर एक ग्रुप बच्चों, हर एक बच्चे को एक पर्सनल मेंटर जो हमारी फैकल्टी होती हैं वो डिप्यूट किया जाता है। तो और इस मेंटर की एक दायित्व है कि वो बच्चों के साथ पढ़ाई के अलावा बात करें। ये उनको करिकुलम पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन ये उनकी एक स्मूथनेस, उनको एट ईज करने के लिए हैं। उनसे बातें करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, अगर कोई उनको लगेगा कि कहीं पे हेल्प चाहिए तो वो ऑफर करेंगे। तो देयर आर दीज पर्सनल मेंटर्स which are deputed to every child who enters the campus of LPU। पूरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, सपोर्ट, और ये भी हमारे एक टाइम टेबल करिकुलम का एक हिस्सा है एकेडमिक कैलेंडर में, कि कितनी देर के बाद या कितनी बार एक वो बच्चों जो नए आए हैं उनको वो जो पर्सनल मेंटर है उनको मिलना उनका एक दायित्व है। तो ऐसा का एक साइंटिफिक प्लस एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम पूरा यहाँ बनाया हुआ है। और तरह इसके अलावा रेगुलर ट्रैकिंग है आपकी। इतना यहाँ पे देखिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की हमने बात की। जब अगर हमारे बच्चे अगर ओलंपिक्स के मेडल्स, या हाल ही में एक प्रधानमंत्री का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था, जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी ने एक फर्स्ट रनर अप ट्रॉफी, जो कि हमें हमारे बच्चों ने वहां पे ये उपलब्धि हासिल की। 51 मेडल्स, जो कि सबसे ज्यादा मेडल टैली थी, वो हमारे बच्चों ने की। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे पूरा जोर रहता है, फोकस रहता है। आपने जो वीडियो थोड़ी देर पहले देखा, उसमें आपने देखा होगा कि कहाँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंटरनेशनल बेंचमार्क इंडोर
हमारे पास स्टेडियम है जिसमें 20 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, 3 स्विमिंग पूल और डाइविंग पूल्स हैं, शूटिंग रेंज है, वॉलीबॉल हैंडबॉल कोर्ट्स हैं, स्क्वाश कोर्ट्स हैं, क्रिकेट हमारे पास एक पिच है जहां बच्चे खेलते हैं। तो कहने का भाव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है जहां पे बच्चा अपने टैलेंट को और निखार सकता है। इतना ही नहीं, टैलेंट उसका बोलने में है, टैलेंट उसका कल्चरल एक्टिविटीज में है, टैलेंट अगर उसका थिएटर में है, टैलेंट अगर उसका फोटोग्राफी में है, टैलेंट अगर उसका ड्राइंग बनाने में है, क्रिएटिव टैलेंट है, कुकिंग में टैलेंट है। ऐसी तरह तरह की क्लब्स हैं, यहाँ पे क्लब कल्चर है। बच्चा जहां भी अपने टैलेंट की समझता है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ही और शी कैन इज मेड अ पार्ट ऑफ दैट, और वो इसी तरह इवेंट्स में भाग लेते लेते अपनी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। तो इट इज अगेन इन अ सिंपल कॉन्सेप्ट, लर्निंग बाय डूइंग। तो जितना वो वातावरण अगर प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे भी वातावरण उतना ही प्रोटेक्टेड है, लेकिन साथ में टैलेंट को अनलीश करने की पूरी आजादी भी है यहाँ। और उसका ट्रैक रखने के लिए मैंने आपको बताया कि पर्सनल मेंटर्स डिप्यूटेड है हमारे फैकल्टी जो बच्चों के साथ करते हैं, और भी इसके बारे में आगे चर्चा होगी कि पूरा का पूरा एक डिवीजन है जो इन चीजों को ख्याल रखता है। तो अभी तक मैं ये कहना चाहूंगा कि राइट फ्रॉम द एंट्री ऑफ द चाइल्ड देयर इज एन एंटायर वेल क्राफ्टेड डिजाइन्ड फ्रेशमन event which eases the anxiety of any child and any parent who comes into LPU. हाँ जी, इसके साथ में एक और पॉइंट भी क्वात्रा सर ने जो आपको बताया है वेरी वेरी वैलिड, कि हाउ वी हेल्प द स्टूडेंट टू अडैप्ट हिमसेल्फ टू बी एबल टू गेट यूज्ड टू द यूनिवर्सिटी लाइफ। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि बच्चे को किसी चीज की एंजाइटी हो जाती है, जैसे हमने बताया, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो यूनिवर्सिटी का है, जो एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी का है, वो काफी फर्क होता है स्कूल और घर से। So sometimes it can happen कि किस बच्चे को एंजाइटी हो जाती है, पीयर प्रेशर हो जाता है, एकेडमिक स्ट्रेस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई की लेवल जो सी होती है वो थोड़ी हाई होती है। सो उस चीज का भी हमने बहुत ध्यान रखा है। हमारे यूनिवर्सिटी में प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड काउंसलिंग सेल है, जिनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ काउंसलिंग एंड हैप्पीनेस। वहाँ हमारे पास ट्रेन्ड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि बच्चे को हम फैसिलिटी देते हैं कि वो आरएमएस भी डाल सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगी आरएमएस क्या होती है, और वो लिख भी सकते हैं, वो वॉक इन भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड है। किसी भी तरीके का कोई भी तरीके कोई स्ट्रेस, कोई वरी, कोई ओवर थिंकिंग कभी भी हो, तो हम चाहते हैं कि बच्चा ये स्ट्रेस अपने आप में ना ले, वो जाए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से, वो बात करे, और they will be very helpful. It is totally free, कोई कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने हैं, and totally confidential. So हम encourage करते हैं कि कभी भी अगर आपका बच्चा हमारे साथ यहाँ यूनिवर्सिटी में आ जाता है और बाय चांस वो आपको कहता है कि मुझे इस चीज का स्ट्रेस होता है, तो आप जरूर उसको इनकरेज कीजिए कि वो काउंसलर से जाकर बात करें। आई कैन अश्योर यू कि हमने बहुत बच्चों के साथ ऐसे प्रीवियसली भी किया, और बहुत उनको, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है वो उनको काफी बड़ी लगती है जब वो नए नए आते हैं, विच इज क्वाइट नेचुरल। इट इज अ नेचुरल फीलिंग ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सेकेंडली, क्योंकि हम पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहते हैं, हमने एक बहुत अच्छी ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विस कॉल योर दोस्त, उनके साथ कोलैबोरेशन की हुई है, which is a very renowned company in India. वहाँ पे भी 900 plus trained counseling psychologists हैं, जिनकी सर्विस अगेन completely free है, and it is completely confidential, and वो available भी हैं 24 hours 7 days a week 365 days a year। कोई छुट्टी, कोई सवेरे, कोई शाम, कुछ भी हो, बच्चा उनके साथ कनेक्ट कर सकता है, टेलीफोनिक कनेक्ट कर सकता है, चैट पे कनेक्ट कर सकता है, वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकता है, एंड दे विल बी एबल टू हेल्प द चाइल्ड। सो ये एक बहुत अच्छा एक जरिया है जहां के हम चाहते हैं कि द चाइल्ड शुड बी हैप्पी इन ऑल एस्पेक्ट्स।
हमने डिपार्टमेंट का नाम ही काउंसलिंग एंड हैप्पीनेस रखा हुआ है। हाँ जी, तो हम चाहते हैं कि इस चीज पे भी आपको बिल्कुल किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। वी हैव काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इन द यूनिवर्सिटी इन हाउस। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? Thank you so much, ma'am. I want to have one question or two. So there's another question from Ms. Mala Saha. She's asking a very simple and pertinent question, which I think you've majorly answered. Her question here is there any facility to take care of this mental health? I think you majorly answered the question only. However, if you want to, maybe throw another light, please feel free, ma'am, and help Mala ma'am understand a little more about it. हाँ जी, मैंने इसी की बात की थी कि मेंटल हेल्थ जो सी है बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक। हमने नोटिस किया है नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट द एडल्ट्स, एवरीबडी हैज फेस्ड अ टाइप ऑफ स्ट्रेस। सो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, मैं अब जब आप हम सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आई वुड लाइक टू से कि ये चीज जो हम अपनी सोसाइटी में अभी तक से टैबू मानते हैं कि जी किसी को कोई मेंटल इश्यू हो तो हम उसको छुपा के रखें, ऐसे नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ टैबू, क्योंकि इट इज अगेन क्वाइट नेचुरल। जब हमारा कोई ऐसा आउटसाइड फैक्टर ऐसे आता है, जैसे पेंडेमिक हुआ, कोविड-19 हुआ, बहुत लोगों के साथ बहुत दे हैव लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस, पढ़ाई में भी अफेक्ट हुआ है, जिन्होंने ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी करना था वो इमीडिएटली नहीं कर सके, उनको ऑनलाइन मोड पर पढ़ना पड़ा, जो कि हम लोगों के लिए टोटली एलियन था, तो बच्चों के लिए तो था ही। सो ऐसा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो मेंटल अवेयरनेस, वी आर वेरी मच encouraging the students कि किसी भी तरीके का आपको कोई भी स्ट्रेस जो आपको मेंटली स्ट्रेस कर रहा है उसमें आप बिल्कुल घबराइए मत, कुछ मत सोचिए, आप सीधा एक अपॉइंटमेंट बनाइए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के साथ। दे विल लिसन टू यू, दे विल नॉट जज यू, दे विल कीप योर conversation totally confidential, and they are fully trained clinical psychologists in the university. You can rest assured that mental awareness is very important. We do make it aware also, बच्चों को भी हम announcements डालते रहते हैं ताकि उनको पता रहे कि कैसे उन्होंने हमारे साथ कनेक्ट करना है। So we do have provision for that also. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. I think you've put all of us at assurance and at a backseat where you have made us realize that today mental health is nothing, and asking for counseling is almost like a right for all of us. How important it is to be physically and emotionally well off, it is equally important to be mentally well off, and that is why the emotional intelligence and emotional question comes across. Okay. I have a very important question that's been coming several times from Mr. Ramesh Buddha. He has a very interesting and a very important question which he's asked several times. Ma'am, I request you to answer the question. The question is, we are down south and we don't use Hindi much in everyday language. So what is the modus operandi, the language that is used at LPU for teaching? If you could enlighten us on that. Sure. Not only do we have students from all states of India, we also have, जैसे क्वात्रा सर ने आपको पहले बताया, we have a lot of international students, almost from 50 countries across the world. So it is very important कि जो हमारी mode of communication during the classes is mainly in English. I would say that most of the classes are always held in English. और जिन बच्चों को थोड़ी सी अगर इंग्लिश में डिफिकल्टी भी होती है तो वो भी दे विल बी एबल टू कैच अप, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास वर्बल एबिलिटी की क्लासेस चलती है साइड बाय साइड, जो कि दे विल बी एबल टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। सो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि वी डू नॉट टीच इन हिंदी, पंजाबी और एनी अदर लैंग्वेज, हम हमेशा इंग्लिश ही Thank you, Balweda ma'am. Thank you so much. That was helpful. We have another question that is again from Mr. Chopra. Mr. Chopra has a simple question. He says, as teachers, you can take care of the child there, but as a parent sitting at home, how do I know what is the progress of my child? I think a very genuine question that is. I would request again, ma'am, if you could really tell us that
How sitting at home can Mr. Chopra take care of the progress of the child? Is he doing fine? Does he need अगेन आपके क्वेश्चन ही बहुत वैलिड है. दिस इज अनदर इशू. जब सब पेरेंट्स ये कहते हैं अरे टीचर को तो मालूम है कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी मालूम है, बच्चे को भी मालूम है, लेकिन पेरेंट्स यूजुअली आर नॉट फील हमें तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही. तो लेट मी टेल यू वंस अगेन कि इसका भी हमने खास ध्यान रखा है. एक डिपार्टमेंट है जो हमने स्पेशली एस्टैब्लिश किया है called division of student relationship. उस division में there is only the teams that are there are to help the parents, and they have an email also called parents@lpu.co.in. आप उस पे लिखें और हमें वो मेल पहुंच जाएगी और आपको पता. सेकेंडली आपको एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन है जो आप अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड कर सकते हैं. जब आप एडमिशन के लिए आएंगे उसी वक्त वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगी. इट्स अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन. जो रजिस्ट्रेशन बच्चे का होगा वही आपका भी होगा. उसके आगे एक फी लग जाएगा फॉर पेरेंट और आपका एक पर्सनल पासवर्ड होगा. उस एप्लीकेशन का क्या फायदा है, आप उसमें जो बच्चा देख सकता है वही आप देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल बच्चा अपना टाइम टेबल देख सकता है. यू कैन ऑल्सो सी द टाइम टेबल. You can see the attendance of the child. You can also see कि वो 9 से लेके 10 बजे की जो क्लास है उसने लगाई या ना लगाई, 10 से 11 की लगाई या नहीं लगाई, वो भी आप देख सकते हैं. फिर उसके जब एग्जाम्स आते हैं मिड टर्म में क्या टाइम टेबल है, कब एग्जाम होगा, कितने टाइम पे होगा, कौन से मोड पे होगा, एंड टर्म एग्जाम कब होगा, उसकी जो कंटिन्यूस असाइनमेंट जिसे हम कंटिन्यूस सीए बोलते हैं वो कब होंगी, कोई नोटिफिकेशन जाएगी रिगार्डिंग द फी पेमेंट, रिगार्डिंग द कोई भी स्पेशल इवेंट अगर होगा, जो कुछ बच्चे को देख सकते हैं वही आप उस एप्लीकेशन से देख सकते हैं. डोंट नीड टू गेट द चाइल्ड टू ऑपरेट दैट. आप खुद ही अपने स्मार्टफोन से अपना पासवर्ड डाल के आप ये अपडेट कर सकते हैं. और जैसे मैंने बताया एक और बहुत अच्छा सिस्टम है, मैंने पहले भी उसकी नाम दिया था, कॉल्ड आरएमएस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट. जब आपके पास एक पासवर्ड आ जाएगा, जब आप यूएमएस मतलब यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस आपको भी मिल जाएगा, जैसे बच्चे को और फैकल्टी को भी मिला हुआ है. तो जब आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा तो आप आरएमएस यूज कर सकते. दिस इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम. इट्स वेरी इजी टू यूज. वो पाथ भी हम आपको बता सकते हैं, वो आप यूज कीजिए. उसमें आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, अपनी सजेशन डाल सकते हैं, अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, अपनी फीडबैक डाल सकते हैं. जो भी आप डालेंगे पूरी एक टीम बैठी हुई है जो कि सिर्फ आरएमएस ही देखती है. वो आपकी क्वेरी को देखेंगे, आपकी सजेशन को देखेंगे, आपके कंप्लेंट को, जो भी कुछ आपने लिखा होगा उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. अगर उनके पास आंसर होगा तो वो दे देंगे, अगर नहीं होगा तो वो उस डिपार्टमेंट से जाके आंसर लेके आपकी क्वेरी को फुलफिल करेंगे. और ये टाइम स्पैन भी जो सा होता है वो बहुत ही रीजनेबल, विद इन मे बी maximum I think 1 to 2 days you will be able to get the answer to your question. So you have full control, I would say, over what is happening to your child, and also you have full control on how you can answer or ask anything about lovely professional university और हम आपको उसका जवाब देंगे. तो ये सारे सिस्टम्स हमारे ऑनलाइन पे हैं. और आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे पास एक ईमेल भी है, parents@lpu.co.in. आप उस पर लिखें. पूरी एक टीम बैठी हुई है जो ईमेल्स ही पढ़ती है, तो वो भी आपको आंसर देंगे. सो कोई ऐसी चीज नहीं है कि यू आर एज मच इन कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड as much as the child is in control of himself. So आपके पास पूरा एक्सेस रहेगा. कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं देख सकते. आप पूरा वही यूएमएस जो हम देख रहे हैं वही आप भी देख सकते हैं. I hope I've been able to satisfy that query. Thank you, ma'am. Thank you so much. That is very insightful. I have two questions, and I'm going to request Quadra sir to answer both because there are a lot of questions pouring in. I think you can answer them together. So the first question is from Poonam ma'am. Poonam ma'am says that my girl is going to be away from the home for the first time. I'm concerned about her safety. There is yet another question from Mr. Srinivas Rao.
who's asked, how do you people take care of the students when they're sick? So if you could throw light and help us understand and answer the queries of both the parents, Uh, please. can you repeat the second part of the question once again, Archana? So the Second question. second question is, where Srinivas has asked, how do you take care of students when they're sick? So do you have any Oh, facility of medical? yeah, true. Uh, Well, again, I believe in rather showing than explaining. So मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये छोटी सी वीडियो पहले देख लें और फिर मैं I will try to answer both the questions, which I believe they would be automatically answered. Let's see. I think that is repeated. Let me thank you. Again, now I would like to answer because आपने देखा भी होगा, आपने अभी सेफ्टी अपने बच्ची की सेफ्टी के बारे में बात की, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ के करीबन 18,000 बच्चों के रहने का आयोजन है यहाँ पे. We got the capacity of almost 18,000 children who can be housed in the campus. और सेपरेट हॉस्टल्स हैं बॉयज और गर्ल्स के. 8 हॉस्टल्स हमारे पास बॉयज के हैं, 6 हमारे पास गर्ल्स के हैं. आप देखेंगे वहां पे जो हमारी वार्डन्स हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, वो भी लेडीज हैं. अंदर वही बच्चा जा सकता है जिसके पास आई कार्ड है और अंदर जाने की उसी हॉस्टल में उसकी रेजिडेंसी है, वहां पे वो तभी जा सकता है. अंदर का वातावरण ऐसा है, कॉमन रूम है जहाँ पे रीडिंग रूम है, टीवी फैसिलिटी है, छोटा सा एक प्रोविजन स्टोर भी वहां पे आपको मिलता है. जो बच्चे अलग अलग प्रांतों से आते हैं, पीपल कमिंग फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, दे हैव अ चॉइस of their even eating menu also. So safety point of view, there are boom barriers. ये आगे आप तस्वीर देख रहे हैं, these are called the boom barriers, कि एंट्री उसी की हो सकती है जिसके पास वैलिड ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है वहां अंदर जाने की. एक दूसरा हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इफ द चाइल्ड फॉल्स सिक. हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस में एक
एक यूनी हॉस्पिटल है जो पूरी तरह से सक्षम है with the medical fraternity, leave alone the super specialty, जो भी बाकी हर तरह की जो एक नॉर्मल मेडिकल एक्सीजेंसीज होती हैं उनको केटर करने के लिए हमारा यूनी हॉस्पिटल है, जहाँ पे ट्रेन्ड डॉक्टर्स नर्सेज हैं। 6 के करीब हमारे पास एम्बुलेंसेज है, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, कई बार कोई इमरजेंसी होती है तो these are the people we can immediately be transferred to get the first medical aid in these hospitals. So मैं as a parent तो कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा बीमार पड़े और उसको ऐसी चीजों की जरूरत हो, लेकिन गॉड फॉरबिड और कभी अगर ऐसी जरूरत पड़ती भी है तो यूनिवर्सिटी इज कंप्लीटली कॉम्पिटेंट टू हैंडल these medical exigencies with the entire uni hospital and trained staff which is there. तो एंजाइटी जरूर होती है, मैं नहीं कहूँगा नहीं होती, लेकिन उसका पूरा बंदोबस्त है, ऐसा वातावरण है LPU में, ताकि it's just a home far away from home. Thank you, Partha sir. Thank you so much. So we have a lot of questions pouring in today. You've answered majorly another question here, which is from Mr. Nagamani. His question was the way of managing food. Please enlighten us on that, because we're from different states and a child may not be able to adjust with the food. I think you've partially answered. If you could just throw another little light on that, sir, that will be really helpful. Yeah, there are different types of messes here which caters to the food habits of these students from where they come. The only thing that I would like to mention at this point of time is that the university is a vegetarian university. We are strictly vegetarian, but within the vegetarian framework, we have the capacity of catering southern, northeastern, northern, middle part of the country. So we are capable of handling all kinds of the food habits. इसके अलावा मेस फैसिलिटी के अलावा यहाँ पे कैफेटेरियाज हैं जो तरह तरह के ऐसे specializations हैं which they cater to. So I'm sure the only constraint, like I said, mentioned, that is we are a vegetarian university, but within that framework, we are capable of catering to all the culinary habits or requirements of children, even their parents when they come visit us, and cater to their own choice of menu also. Thank you, sir. Thank you so much. I think to answer Mr. Nagamani. We have another question, sir, from Mr. James. He has a simple question. He says, what is the road ahead in terms of opportunities for my child's overall growth, be it holistic learning? What is the road ahead? You could help us understand that. Okay, well, they can see the slide here. Like I said, this is the other part of the holistic development, where a very good, strong, robust sports ecosystem is there to develop the sporting talent of the child. This is just, I'm highlighting the Olympic achievements, but like I mentioned, very recently we have scored or achieved the first runner-up trophy in the Khelo India University Games, and this was just the second time that we had participated in that, and we have scored the highest tally of medals. तो तरह तरह की गेम्स हैं, मैंने आपको बताया, वहाँ पे हमारा एक इंडोर स्टेडियम है which is benchmark to all the international standards. वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है आपके बच्चों की जो अपना तरह तरह की गेम्स खेल सकता है, स्विमिंग, शूटिंग रेंज, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्क्वॉश, and even other the tracks are there where people can actually hone their other sporting talent. तो ये होलिस्टिक पार्ट का एक हिस्सा था. दूसरा, अगर बच्चा देखिए पढ़ाई में तेज है, रिसर्च करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं ये हाल ही की एक अचीवमेंट है. 13 LPU professors have been ranked. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक
स्टडी के बेसिस पे उनकी एक खबर है कि टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स जो मेरे प्रोफेसर्स पढ़ाने वाले हैं इतने रिसर्च फोकस्ड हैं, तो अगर बच्चे उनसे साथ मिलके, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फैकल्टी लोग डेजिग्नेट करते हैं, बच्चे ग्रुप में वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, एंड दीज आर द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर ऑलवेज either to resolve any social cause or the need of the industry। तो इन तरह के फोकस रहते हैं। तो इस तरह की होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो आप बात कर रहे थे, उसका दूसरा पहलू मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तीसरा पहलू मैं फिर आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा कि जिसमें वेयर हाउ एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रीम तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक झलक थी, जहां बच्चे, हर बच्चा, कुछ वो बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप उसके खून में होती है, वो बिजनेस इंडस्ट्री चलाना चाहता है, तो उसकी इनोवेशन माइंड में जो आइडियाज हैं, आइडिया से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक उनको यहाँ फैसिलिटेट किया जाता है। ये आपने देखा हमारे बच्चों के ही प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने बनाए। पैंडेमिक में कोच बनाया, एक टचलेस डस्टबिन बनाया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सोलर पावर्ड कार्स बनाई हमारे बच्चों ने। गो कार्ट जो व्हीकल्स हैं, रेसर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इवन कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एक हमारा दो बहुत मकबूल हमारे एनुअल एक इवेंट्स माने जाते हैं जो बच्चे और हर स्टाफ बहुत बेताबी से उनका इंतजार करता है, कहता है वन इंडिया, जिसमें हर प्रांत की जो खूबियां हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, उसका एक विजुअल इम्पैक्ट दर्शाया जाता है, वहां पे एक झलकियां निकलती हैं। इसी तरह का हमारा एक दूसरा है वन इंडिया वन वर्ल्ड। तो वो ऐसा प्रोग्राम है जहाँ इंटरनेशनल जो हमारे सभ्यताएं हैं, जो बच्चे बाहर से आए हैं, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू highlight their culture, their traditions and their strengths. So in all, let me assure the concerned parents that you name it and you will find it in LPU. The ecosystem, the facilities, the infrastructure, and above all, the commitment by each and every person to cater to the need of each and every stakeholder. ये ऐसा विजन हमारे मैनेजमेंट का रहा है। इतनी कम समय में इतनी उपलब्धियां तभी हो पाई हैं, और ये सबको देखते हुए भी एक और न्यूज में आपके साथ जो पुरानी हो चुकी है शेयर करना चाहूंगा कि हमारे माननीय ऑनरेबल चांसलर whose vision that we were trying to share with you, which he has practically implemented in the LPU campus for the students and their well-being, was recognized, and he was designated, elected as the member of parliament to again spread the slogan that he had coined: transform India, transform education, transform India. So now he's got an opportunity to transform India, and again
was a more reason for us to be proud of being part of the LPU. Thank you, sir. That was very, very helpful. I'm sure we're going to be not only leading the university, but also the way you said, under sir's ages, we'll be able to lead and transform the education system at India. There are a lot of questions that are pouring in from parents right now in terms of if somebody's taken an LPU NEST test, if there are certain scholarships related to seats, related to placements, in particular about forensic science and all that. I will have to put across because of paucity of time. We really regret. We'll answer all these questions. We'll answer every question that we've received in the chat through emails, and we are sure that no question that we've received will go unanswered. However, because of paucity of time, we'll have to answer all of them over emails and not right now. I will request Quatra, sir, if you propose a vote to all the parents and all the. Thank you. But do note down all the questions and we will definitely get back to each and every one. Yes, indeed. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. And again, thank you, parents. We really look forward to welcome each one of you on campus very soon. We really request that it would be a delight for each one of you to come here, see it for yourself, get your questions answered beyond the webinar. And we are sure that we'll stay committed to whatever we put across. Thank you so much, everybody. At the end of the day, most overall key to a child's success is the positive involvement of the parents. So thank you so much, experts. So this webinar was building tomorrow, today, the role of parents. And experts, thank you so much. Your years of research, your depth of understanding the topic, and your ability to present the topic in such an interesting way produce one of the most wonderful afternoon for all the attendees. So on behalf of all the attendees of this webinar, I want to thank you for your insightful presentation. Hopefully the attendees found this webinar to be valuable and will able to utilize this information provided. Thank you so much. Once again, I'm obliged and indeed gratitude for your valuable time.